So students, we are discussing over a surface irrigation method. आप सबको पता होना चाहिए surface irrigation में हम क्या कर रहे हैं. We are applying the water from the surface. Surface या over the surface से हम पानी ले रहे हैं. Surface के ऊपर में जो पानी रखा हुआ है, we are taking that water for for agriculture. Okay. So in that case, what we are doing, we are either using a gravity for applying the water, or we are using a pumping system. That means lifting the water. Okay. So surface irrigation is categorized into two forms. One is flow irrigation and the second one is lift irrigation. Flow irrigation में क्या करोगे आप? Surface over the surface पे से water लोगे and you will allow that water to flow over the agricultural field. Okay. Whereas लिफ्ट इरिगेशन में क्या करोगे आप? ये दोनों भी सरफेस इरिगेशन के पार्ट्स हैं. लिफ्ट इरिगेशन में आप क्या करोगे? यू विल पंप द वाटर फ्रॉम अ रिजर्वायर, पॉन्ड, लेक एंड supply it to the agricultural field. I hope it is clear to all of you. Also, you should know that surface irrigation method जो है, around 75% of the irrigation is done by surface irrigation method. यानी हम सरफेस के ऊपर से ही पानी लेकर एग्रीकल्चरल फील्ड पर अप्लाई करते हैं. आप सरफेस पे से कहाँ से लेते हैं? 75% जब बोल रहा है कि एग्रीकल्चरल फील्ड पर इरिगेशन होता है बाय सरफेस इरिगेशन मेथड, तो पानी आता कहाँ से होगा? पानी आप रिजर्वॉयर से यूज करते हो, जो बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स है, और आप डैम से पानी लेते हो. डैम पे से पानी को उठाया जाता है और एग्रीकल्चरल फील्ड पर भेजा जाता है. ओके. सो स्टूडेंट्स, ये अब बता दिया गया आपको मेथड ऑफ इरिगेशन. सरफेस इरिगेशन डिवाइड इनटू टू, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन. आपको नोट बता दिया गया है 75% ऑफ द इरिगेशन इज डन बाय सरफेस इरिगेशन मेथड. देन फ्लो इरिगेशन. फ्लो इरिगेशन व्हेन वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन. जब आप ऊपर के एलिवेशन से नीचे के एलिवेशन पे पानी ट्रांसफर करते हो, तो यू डोंट नीड एनी मैकेनिकल डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग द और सप्लाइंग द वाटर. ओके. ग्रेविटी इटसेल्फ helps you for transferring or supplying the water from higher elevation to lower elevation. Whereas अगर elevation उल्टा है, from lower elevation to higher elevation आपको water supply करना है, then you need pumping. You need a pumping method for transferring the water or supplying the water from lower to higher elevation. Okay. Now let's come to the types of flow irrigation. Flow irrigation. First type. Perennial irrigation. Now, what is this perennial irrigation? It is nothing but perennial क्या होता है? When the water is applied throughout the crop period or throughout the year. It is called as a perennial river, which flows throughout the year is known as a perennial river. So perennial irrigation क्या है? A continuous supply of water as per the crop requirement during crop period. This is called as a perennial irrigation. क्या चीज है perennial irrigation? जब आप continuous water supply कर रहे हो, आप हर उसके throughout the crop period आप पानी irrigation से ही मंगवा रहे हो. That is called as perennial irrigation. The next type of irrigation in flow irrigation is inundation irrigation. इस मेथड में आप क्या करते हो? इन दिस मेथड यू जस्ट डू द फ्लडिंग. ओके. आप सीधा सीधा पानी
फ्लो करा देते हो, बहा देते हो. ओके, दैट मेथड इज कॉल्ड एज inundation irrigation, where you will do the flooding over the entire agricultural field. Okay, that is inundation irrigation. आप क्या करते हो इसमें, एक साथ आप पानी को प्रोवाइड करते हो और पूरा पानी वहां रहने देते हो जितना आपको रिक्वायर्ड है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Okay, now let's move to the next method of irrigation, that is subsurface irrigation method. आप subsurface irrigation method में क्या करोगे, you will apply the water from below the earth surface. Okay, you will apply the water to the agricultural field from below the earth surface or ground level. Okay, कहाँ पे, डायरेक्टली टू द रूट. ओके, अब ये कैसे प्रोवाइड करते हैं इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. जस्ट बाय ड्राइंग अ सिंपल एग्जांपल you will be able to know how it is provided to the field. For example, एक surface है, surface पर आप roots जो कि अंडरग्राउंड होते हैं उस रूट्स पर पानी पहुंचा रहे हो. ये आपका कोई भी तरीके का क्रॉप हो, आप ये ग्राउंड लेवल से नीचे पानी प्रोवाइड कर रहे हो. कैसे, you will just do a simple trenching or excavation where you will add a water, where you will add a water which will infiltrate, which will infiltrate into the soil and flow laterally and get provided directly to the root of the crop. ये हो गया subsurface method of irrigation. Another example of it is, आप क्या करते हो, अंडरग्राउंड परफोरेटेड पाइप डाल देते हो. परफोरेटेड पाइप से पानी को फ्लो करवाते हो और परफोरेटेड पाइप्स के आउटलेट्स निकले होते हैं. ओके, आउटलेट्स निकले होते हैं जिससे पानी बाहर निकलता है और पानी बाहर निकल के लैटरली ट्रांसफर होके रूट्स तक जाता है थ्रू कैपिलरी एक्शन, थ्रू कैपिलरी एक्शन. और इस तरीके से द वाटर गेट्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द रूट बाय सबसरफेस मेथड. दिस इज कॉल्ड एज सबसरफेस इरिगेशन. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आगे बढ़ते हैं हम. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द सरफेस इरिगेशन मेथड. सरफेस इरिगेशन मेथड में आपने क्या पढ़ लिया है, अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग. अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग हो चुका है आप लोग का. देखते हैं हम यहाँ पर. देखिए, सरफेस इरिगेशन अनकंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग मेथड ये हो चुका है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन इज, दैट इज बॉर्डर स्ट्रिप मेथड. अब बॉर्डर स्ट्रिप मेथड क्या चीज है, ये भी सरफेस इरिगेशन मेथड का एक प्रकार है जिसमें आप क्या करने वाले हो, आप बॉर्डर्स बनाने वाले हो. देखिए आप, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इट. क्या हो रहा है इसमें, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्ट्रिप्स बनी हुई दिख रही है. ये स्ट्रिप्स बनी हुई है, ये स्ट्रिप्स बनी हुई है सेपरेटेड बाय दिस बंड, जहाँ पे आपके क्रॉप्स उगे हुए हैं, सेपरेटेड बाय दिस बंड. और बंड्स को हम लिवीज भी कहते हैं या डाइक्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम, लिवीज भी कहते हैं या डाइक्स भी कहते हैं. So the strips are separated by controlled levees or controlled dikes or controlled bunds. और ये strips जो है, this is in a sloping manner from one end to another end. ये जो पोर्शन है, द स्टार्टिंग पोर्शन, एक्चुअली उसमें भी स्ट्रिप बना होता है. एक बड़ा स्ट्रिप जिसको हम डाइक्स यानी डाइक्स भी कह सकते हैं. एक बड़ा स्ट्रिप होता है जिससे पानी, सपोज यहाँ से अगर पानी आगे बढ़ रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक, या जहां तक आपका फार्मिंग एरिया है वहां तक ये लंबा स्ट्रिप चलेगा. अब क्या होगा, इस लंबे स्ट्रिप के परपेंडिकुलर आपके ये ऐसे लिवीज निकलेंगे. ठीक है, आपके लिवीज निकलेंगे जो सेपरेटेड रहेंगे विथ बंड्स, सेपरेटेड विथ सॉरी स्ट्रिप्स निकलेंगे जो सेपरेटेड रहेंगे विथ बंड्स. ओके, और ये स्ट्रिप्स आगे चलते रहेंगे. इसमें इससे पानी आगे बढ़ेगा मेन स्ट्रिप से, फिर ये सेकेंडरी स्ट्रिप में पानी जाएगा, स्लोप से पानी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हुए एंड ऑफ योर एरिया
तक जाएगा, एंड ऑफ योर एरिया तक जाएगा जहां तक आपने फार्मिंग की है। ठीक है, फिर वहां पे हम अगेन एक स्ट्रिप दे देंगे। तो क्या होगा, यहाँ से आपने पानी सप्लाई किया है, ठीक है, पानी इसकी हेल्प से आपके फार्मिंग एरिया में गया है, सेकेंडरी स्ट्रिप से पानी आगे बढ़ता चला जाएगा, जितना पानी यूज होना था यूज हो गया, रिमेनिंग वाटर विल गेट डिस्चार्ज इन दिस लीव। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप सबको ये चीज क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज अ बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। आप यहाँ देख सकते हो एक्चुअल एग्जाम्पल में कि पानी यहाँ से आगे बढ़ रहा है। यहाँ देखिए, आप मैं आपको पीपीटी में शो करता हूँ। इन स्ट्रिप्स से पानी आगे बढ़ेगा इन अ नेचुरल स्लोप या मैन मेड स्लोप्स, और पानी जितना यूज होना यूज हो जाएगा। आखिरी में आपको वापस से एक डाइक मिलेगा जिसमें पानी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अननेसेसरी पानी वहां रुका नहीं रहेगा, जिससे आपका लैंड खराब नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।